हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors. Okay, so cross product is also called the vector product because cross product is always a vector quantity. Suppose अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर, दूसरा कोई बी वेक्टर है, दिस इज योर बी वेक्टर, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. So A cross B is defined as A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B, sin theta n unit vector. Okay, this A unit vector represent the direction of the A cross B. Okay, so what is the magnitude of A cross B? Magnitude of A cross B is like that. A cross B is equal to A B sin theta. Okay, this is the magnitude of A cross B. चूँकि A क्रॉस B जो होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज योर टॉर्क. यह क्या है आपका? ये टॉर्क है. दिस टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड द फोर्स. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो टॉर्क है ये आपका पोजीशन वेक्टर R और फोर्स का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज योर टॉर्क. Okay, so how to find out the direction of A cross B? So direction of A cross B is always perpendicular to the vector A and the perpendicular to the vector B, and also we can say that the direction of A cross B is always perpendicular to the plane which makes by the A and B. Okay, so here we use the right hand thumb rule. If you want to find out a direction, so we can use here the right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Okay, अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं A क्रॉस B का तो क्या करेंगे? आप इस पाम को यहाँ पे इसे रखिए, है ना, और इस उंगली को आप जो फिंगर्स है उसको मूव कराइए, तो दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द A क्रॉस B. ओके, so A cross B is perpendicular to the A cross B, this one like that. So direction of A cross B is perpendicular to the vector A, perpendicular to the vector B, and also the plane which makes by the vector A and B. Okay, so we can easily find out the direction of A cross B. Suppose if you want to find out the direction of B cross A, okay, B cross A, so just you put this palm like that and move your finger like that. So when you move that finger like that, so this thumb is go inside the board, means the direction of this B cross A is opposite to the A cross B. Okay, see, suppose the direction of A cross B along the Z axis, so the direction of B cross A is in negative direction of Z axis. Okay, so A cross B, we can say that A cross B is always negative of B cross A, like that. मैग्नीट्यूड जो दोनों का होगा A क्रॉस B और B क्रॉस A का, वो दोनों सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा. बस यही फर्क है. सो वी कैन से दैट A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर B क्रॉस A. ओके, चलिए तो हम देखते हैं इसमें यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर के टर्म में हम देखते हैं कि I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I का वैल्यू क्या होगा. ओके, सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस. हियर द I, this is your J, this is your K. Okay, so you have to find out the I vector cross I vector. Suppose you have to find out the I vector cross I vector.
So you know vector A vector cross B vector is equal to magnitude of A, magnitude of B, sin theta, unit vector, like that. Okay. So I cross I is what? Magnitude of I, magnitude of I, and both are lie on the x plane, sorry, x axis. So what is the angle between I and I? Cos 0. So we can say that, and this is a unit vector. Okay. So sorry, sin 0, sin 0 unit vector. Okay. Sin 0 is what? 0. So magnitude of phi is equal to 1, magnitude of phi is equal to 1, sin 0 is 0. This is your unit vector, means what? 0. This is your null vector. Okay. सो यहाँ पे जो i क्रॉस i होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. सिमिलरली अगर आप निकालना चाहें j क्रॉस j का, तो आपको क्या मिलेगा? j क्रॉस, ये भी क्या होगा? j क्रॉस, और दोनों के बीच का एंगल हाउ मच? 0 है, साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू व्हाट? 0. सो j क्रॉस j इज ऑल्सो 0, मीन्स नल वेक्टर. Similarly, if you want to find out the k cross k, k vector cross k vector. Okay. So magnitude of k sin 0 unit vector is equal to how much? 0. Okay. So अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर सेम यूनिट वेक्टर है, अगर आपका सेम यूनिट वेक्टर है i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, उसका वैल्यू जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आपको 0 मिल रहा है. ओके. नाउ हम देखते हैं i क्रॉस j, इसका वैल्यू क्या होगा? ओके. सो i j एंड द एंगल बिटवीन i एंड j इज हाउ मच? 90 डिग्री. ये जो एंगल होगा और i और j के बीच में वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा. ओके. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो ये जो आपको डायरेक्शन मैंने बताया कि ये जो डायरेक्शन होता है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, वो हमेशा i के परपेंडिकुलर होता है, और आपका जो दूसरा वेक्टर है यहाँ पे j, उसका भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो i j प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन है, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, है ना. तो ये जो डायरेक्शन होगा ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मीन्स i j के प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आपका k. दिस इज योर k वेक्टर, लाइक दैट. ओके. सो आपको वैल्यू क्या मिल गया? 1 इंटू 1 इंटू 1 k वेक्टर. सो दिस इज योर k वेक्टर. ओके. सो i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल गया? k वेक्टर. सिमिलरली अगर आप j क्रॉस k निकालना चाहेंगे, j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या होगा? j क्रॉस k. ओके. j क्रॉस k, ये अलोंग द y एक्सिस है, ये अलोंग द z एक्सिस है. ओके. तो मैग्नीट्यूड ऑफ j, मैग्नीट्यूड ऑफ k, हाउ मच एंगल? साइन 90 डिग्री. देयर इज ए यूनिट वेक्टर लाइक दैट. ओके. सो दिस इज योर 1 इंटू 1 इंटू 1, बट इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे j k का परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा आपका? j क्रॉस k के परपेंडिकुलर आपका क्या मिल जाएगा? x एक्सिस. अलोंग द x एक्सिस मतलब ये i हो जाएगा. ओके. तो j क्रॉस k आपको i मिलेगा. सिमिलरली अगर आप k क्रॉस i करना चाहें तो आपको क्या मिलेगा? k क्रॉस i. ओके. तो k क्रॉस i करेंगे आप तो k का यूनिट वेक्टर, i का यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हाउ मच? 90 डिग्री, एंड देयर इज ए यूनिट वेक्टर. सो हियर 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 हाउ मच? 1. और ये जो है k j, इसके जो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या मिल जाएगा आपको? j वेक्टर. दिस इज जो j यूनिट वेक्टर. तो जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिल जाएगा j. उस k क्रॉस i यहाँ जो मिल गया वो क्या मिल गया? j मिल गया. ओके. तो यहाँ आपने देखा i क्रॉस j k मिला, j क्रॉस k क्या मिला? i मिला, और k क्रॉस i आपको क्या मिला? j मिला. ओके. आप अगर इसके रिवर्स कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव मिल जाएगा, है ना. सो
अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं जे क्रॉस आई तो क्या मिल जाएगा माइनस के क्रॉस जे क्या मिल जाएगा माइनस आई, यहाँ पे आपको क्या मिला आई मिला। तो अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे के क्रॉस जे कर देंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस आई मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस जे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे याद कीजिए, अगर मान लेते हैं कि आप एंटी क्लॉक में यहाँ पे इसको आई बोल रहे हैं, इसको आप जे बोल रहे हैं और इसको इधर आप के बोल रहे हैं, ओके लाइक दैट। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, आप मूव कीजिए एंटी क्लॉकवाइज आई जे देन के, तो आई क्रॉस जे इज ऑलवेज इक्वल टू के, ओके लाइक दैट। सिमिलरली अगर आप जे क्रॉस के है तो जे क्रॉस के अलॉन्ग आप मूव कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस के क्या आ रहा है आपको आई, तो क्या आ गया यहाँ पे आई आ गया। सिमिलरली के क्रॉस जे आई है, के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो क्या मिल गया आपको जे मिल गया, के क्रॉस आई क्या मिला जे, ओके। अगर आपको याद करने का तरीका यही है कि आप क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, एक वेक्टर को आई यहाँ मानिए, ये जे है एक के है, ओके। सो आप इसके एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको जो रेगुलर मिल रहा है आई के आई जे के बाद क्या मिल रहा है के मिल रहा है, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया के हो गया, के क्रॉस आई क्या होगा के क्रॉस आई, देन क्या मिलेगा आपको जे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं सपोज जे क्रॉस आई, ओके जे इधर है और आपको सपोज आप निकालना चाह रहे हैं जे क्रॉस आई, याद करने का तरीका यही है कि जे क्रॉस आई, तो अभी आपने देखा था जो एंटी क्लॉकवाइज था आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था, लेकिन क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा निगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो जे इधर है आई इधर है, देखिए हम उल्टा डायरेक्शन ले लिए, दिस डायरेक्शन क्या है आपका क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई, ओके तो क्या मिलेगा माइनस के मिलेगा, ओके। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि के क्रॉस जे निकालना, के क्रॉस जे, ये याद करने का तरीका है, आपका के यहाँ है जे इसके पीछे देखिए, तो क्या हो गया ये हो गया क्लॉकवाइज, तो के जे उसके बाद क्या रहा आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपको नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के लें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आई इधर है के इधर है, मतलब आप इधर मूव कर रहे हैं इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आई के उसके बाद क्या है जे, तो आई क्रॉस के यहाँ होगा माइनस जे। तो ये याद करने का तरीका है, एंटी क्लॉकवाइज में आप पॉजिटिव लीजिए और क्लॉकवाइज में आप नेगेटिव लीजिए, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ओके। नाउ हम कंसिडर करते हैं कोई ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हम कंसिडर करते हैं कि कोई बी वेक्टर है, ओके। सो अगर हम मानते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, इसका कंपोनेंट है along द एक्स एक्सिस, along द वाई एक्सिस, along द जेड एक्सिस, ओके। सो इसका वैल्यू क्या होगा, दूसरा वेक्टर आप कंसिडर कीजिए बी वेक्टर, ओके। दूसरा हमने कंसिडर किया बी वेक्टर जिसका वैल्यू है बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ओके। सो आपको अगर फाइंड आउट करना है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई वेक्टर हियर जे वेक्टर हियर के वेक्टर, ओके लाइक दैट। अब देखिए ए वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है along द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ए एक्स ए वाई ए जेड, कंपोनेंट ऑफ बी जो है बी एक्स बी वाई बी जेड, ओके। इसको आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में।
अब आपको वैल्यू निकालना है ए क्रॉस बी का, तो आप क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर दिस वन आप क्या करेंगे, इसको रिमूव कीजिए, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, दूसरा जो होगा जे कंपोनेंट जे लाइक दैट, सो दिस वन रिमूव कीजिए, तो ए एक्स बी जेड और दूसरा क्या होगा माइनस बी एक्स ए जेड। ओके, नाउ के इक्वल टू क्या होगा, सॉरी प्लस के, और इसको आप रिमूव कीजिए दिस रो एंड दिस कॉलम, क्या मिलेगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ऐसा आपको मिलेगा, है ना। तो जो ए क्रॉस बी का अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे लाइक दैट, और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई आपका एक वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं कि आपका पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i + 3j + 4k लाइक दैट। ओके, आपका जो फोर्स है इतना आपका मीटर दिया हुआ है, अगर फोर्स आपका गिवन है 10i + 4j + -20k लाइक दैट, -20k लाइक दैट। ओके, आपको फाइंड आउट करना है कि इतना क्या होगा न्यूटन, यू हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क। सो हाउ टू फाइंड आउट द टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर i j k, so what is the value of I j k, so what is the value of here r 2 3 4, what about the force 10 4 -20, 10 4 -20। सो आप इसको जस्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए और इसका वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिए। इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इसका वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई वेक्टर दिस वन -60 -14 16। ओके, दिस वन अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू आई -60 -16। ओके, दिस वन आई माइनस जे को अगर वैल्यू लिखना चाहे जे के टर्म में तो क्या होगा, दिस वन रो एंड कॉलम, सो -40, व्हाट अबाउट दिस वन -40। ओके, एंड व्हाट अबाउट के का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 8 -30 लाइक दैट। ओके, सो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे वो मिल जाएगा 6 7 -76i + 80j एंड दिस वन हाउ मच -22k। सो आपको यहाँ पे जो आर करो, यहाँ पे जो वैल्यू मिला टॉर्क का वैल्यू वो मिल गया r क्रॉस f इज इक्वल टू दिस वन, आपको यही मिला। तो टॉर्क का वैल्यू मिला वो क्या मिला आपको, r क्रॉस f, दिस इज -76i 80j -22k। ओके, दिस वन क्या होगा, किस में होगा, यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओके, सो द यूनिट ऑफ दिस वन इज टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। तो इसका जो वैल्यू मिला आपको -76i + 80j -22k न्यूटन मीटर। ओके, सो कोई भी दो वेक्टर आपके पास गिवन हो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
नाउ हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, जो ए क्रॉस बी है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है ये हमेशा माइनस, इसको बोल सकते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, है ना। अभी आपने देखा था कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इट मीन्स दिस इज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, दूसरा फर्स्ट वन, दिस इज व्हाट अबाउट द एसोसिएटिव लॉ एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा जो है आपका ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा तो ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको फॉलो करता है और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है ना, इसको भी ये फॉलो करता है, बट एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। सपोज एसोसिएटिव लॉ दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक है, ऐसा है आपका, ऐसा है। तो ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी ए बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको इतना ही समझना था। आपको कैसे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, उसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है, जिसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। अगर ए वेक्टर गिवन है, आपका बी वेक्टर गिवन है, तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आप इजीली ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत टफ नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका प्रूफ भी दे सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो अभी आपने देखा था कि ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपने देखा था, जो वैल्यू मिला वो सब क्या मिला था, सारा टर्म जो आपको मिला था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, है ना। सारा टर्म जो आपको मिला था वो क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। चलिए, थैंक यू।